مجھے کالج کے گارڈ نے ایک دن نکال دیا تھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں. لیکن جب جاب ہوئی تب بھی کوئی نہیں مان رہا تھا کہ نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں, ان کی جاب ہوتی ہی نہیں ہے. تو دادا ابو نے کہا یونیفارم پہن کے آؤ, پھر ان کو یقین ہے کہ آج آپ کی ملاقات پاکستان کی پہلی ٹرانسجنڈر پولیس آفیسر سبیحہ سے کروائیں گے, جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے محکمہ پولیس کا حصہ بنی. سبیحہ جہاں والدین کا فخر بنی, وہاں اپنی کمیونٹی کو بھی تحفظ فراہم کر رہی ہیں. پولیس تحفظ مرکز رحیم یار خان میں تعینات سبیحہ کے لیے یہ سفر کتنا مشکل تھا, آئیے آپ کو ان کی زبانی سناتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اسد محمود اور میں اس وقت موجود ہوں پولیس تحفظ مرکز رحیم یار خان میں, اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے پولیس تاریخ میں اور پنجاب پولیس کی تاریخ میں تعینات ہونے والی پہلی ٹرانسجنڈر پولیس آفیسر سبیحہ. اور یہ یقیناً اپنی کمیونٹی کے لیے بھی بہت بڑے فخر کی بات ہے, اور یہ ہم سب کے لیے جو ہے نا قابل فخر ہیں. اور سبیحہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں, اور انہوں نے جو اپنی تعلیم حاصل کی ہے اس سفر میں ان کو کتنی مشکلات درپیش آئی ہیں, اور یہ جو گول ہے اچیو کر کے بیٹھی ہیں, اور آج یہ یونیفارم جو اپنے سجا کے بیٹھی ہیں, تو یہ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں اور ان کی کیا تاثرات ہیں, یہ سب ہم آپ کو سبیحہ کی زبانی سنواتے ہیں. السلام علیکم سبیحہ. وعلیکم السلام. جی, سب سے پہلے تو میں آپ کو سیلیوٹ پیش کرتا ہوں. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ سفر جو ہے آپ کا کیسا رہا, کہاں سے شروع ہوا, اور کیا کیا مشکلات آپ کو جو ہے درپیش آئی ہیں. جیسے روٹین کے مطابق ہوتا ہے, ہر کسی کو پتہ ہے کہ ایک اپوزٹ جینڈر کو کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں, تو وہ مجھے بھی پیش آئیں, میں نے بھی فیس کی, جو مشکلات مطلب ہیں تعلیم میں آتی ہیں. تو 8ویں کلاس میں مجھے پتہ چلا کہ میں اپوزٹ جینڈر ہوں, تو تب مجھے لوگوں کی باتیں اور جو اسکول میں بچے ہوتے تھے تنگ کرتے تھے, ان کی وجہ سے میں ڈسہارٹ ہوئی. تو 2 سال میں نے اسکپ کر دیے اس کے اسٹڈی کے. تو میں نے کہا نہیں, اب بیٹھنا نہیں ہے سبیحہ, کچھ کرنا ہے آپ نے. تو میں نے پرائیویٹ ایڈمیشن لیا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے, گھر تیاری کی میں نے کمبائن. تو پھر میں نے پیپر دیے اور ماشاءاللہ اچھے مارکس سے میں پاس بھی ہوئی. اس کے بعد میری دوست تھی, اس نے کہا کہ آپ ایڈمیشن لیں کالج میں, تو اس نے میرا ایڈمیشن لیا, میرا ساتھ دیا, اور میں نے انٹر اور گریجویشن ظاہر پیر وومن کالج سے حاصل کیا, اور ایم اے یہاں رحیم یار خان گورنمنٹ خواجہ فرید کالج سے حاصل کیا, اور آگے بھی تسلسل جاری ہے تعلیم کا. جی ماشاءاللہ, بہت ہی زبردست. اور سبیحہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو جو اس سفر میں مشکلات تھیں, لیکن آپ کی جو ایک اس دوران تعلیم سفر میں کوئی تلخ پہلو کوئی آپ کا ہو, کوئی ایسا جو آپ کو ابھی بھی یاد آئے تو آپ یہ کہ تکلیف دہ ہو آپ کے لیے. تلخ پہلو مجھے یہاں رحیم یار خان سٹی میں حاصل ہوا, جب میں نے ایم اے کے لیے ایڈمیشن لیا کالج میں. یہاں ہاسٹل کا ایشو آ رہا تھا, کوئی بھی قبول نہیں کر رہا تھا کہ ہاسٹل میں اور لڑکیاں ڈسٹرب ہوتی ہیں اور ماحول خراب ہوتا ہے. اور دوسرا تلخ پہلو کہ مجھے کالج کے گارڈ نے ایک دن نکال دیا تھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں. یقیناً یہ ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہے, اور میں آپ کو جو ہے نا اگین سیلوٹ پیش کروں گا کہ جس طرح آپ نے بہادری سے اور باہمت بن کر جو ہے سب کچھ فیس کیا. تو پھر اس کے بعد کیسے اس کو کنٹینیو رکھا آپ نے؟ وہی دوست جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اس نے چند اپنی سہیلیوں کو منایا, اور وہ فیمیل فرینڈ تھی آپ کی؟ فیمیل فرینڈ ہے, اقرا نام ہے اس کا, اور وہ سن رہی ہیں تو ان کا میں تھینک یو کروں گی. اس نے اپنی کچھ دوستوں کو منایا کہ جی اقرا, آپ اگر ان کا کہنا ہے کہ سن رہی ہیں تو میں آپ کا خصوصی یہ کہہ رہی ہیں کہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے ان کو سپورٹ کیا, اور میں بھی آپ کو جو ہے نا سیلوٹ پیش کروں گا آپ کو بھی کہ جس طرح آپ نے ایک ایسے دلدل سے نکال کے ان کو جو ہے نا ایسی منزل پہ لا کھڑا کیا ہے کہ جہاں اب یہ جو اپنے سارے خواب دیکھ سکتی تھیں ان کو یہ اب اچیو بھی کر سکتے ہیں. تو مزید آپ سے جو ہے نا گفتگو ہم کریں گے. سبیحہ مجھے یہ بتائیں کہ محکمہ پولیس کا آپ نے کیوں انتخاب کیا, اور یہاں تک کیسے آپ پہنچے؟
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा गया था, तो मैंने यही जवाब दिया था कि मैं कुछ अलग करना चाहती थी। डांस और बैंगिंग वगैरह तो हर कोई करता है, हमारी कम्युनिटी का जो है मतलब मेन रोल यही रहा है, डांसिंग और बैंगिंग वगैरह। तो मैं इनसे कुछ हटकर और अपनी कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए ये फ़ोर्स ज्वाइन करना चाहती थी कि मैं ख़ुद भी सिक्योर हो जाऊंगी और अपनी कम्युनिटी के लिए भी इस फोर्स में आकर कुछ करूंगी। तो एक तो यही, दूसरा ये कि हम लोगों को तंग करने की बजाय उसकी हिफाजत भी कर सकते हैं। तो ये फोर्स सबसे ज़्यादा बेस्ट रही है मेरे लिए। जी सही। तो ज्वाइनिंग के दौरान भी कोई इस तरह का कोई वाक़यात तल्ख़ कोई हुए आपको जहाँ आपको तकलीफ़ हुई हो? जॉइनिंग ये मेरा दूसरी अटैम्प्ट थी, क्योंकि पहली अटैम्प्ट जो थी ना, सारी वेरिफिकेशन करने के बाद इन्होंने सिर्फ ये मेजरमेंट और रनिंग के प्रोसेस से मुझे इस वजह से निकाला था कि आप ट्रांसजेंडर हैं। गार्ड ने कहा कि आपका अंदर आना अलाउ नहीं है, मुझे रोका गया है। इसके बाद मतलब जब दूसरी कोशिश मैंने की तो उसमें यही कि मैंने सारे प्रोसेस कर भी लिए, ट्रेनिंग पे गई, वहाँ से मुझे रात को निकाला गया। तो लाहौर में पहली दफ़ा गई थी, मतलब ये लेके गए थे, मुझे पता भी नहीं था वहाँ की सड़कों का कुछ, और मुझे ये भी पता नहीं था कि किस तरफ वाली बस रहीम यार ख़ान को जा रही है। तो वो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ का लम्हा था। तो फिर दोबारा फिर कैसे आप एंटर हुए? फिर बस डीपीओ असद सरफराज थे, उन्होंने कोशिश की, मैंने लेटर वगैरह लिखे टीसीएस के ज़रिए, मतलब तो कोशिश करती रही, फिर उन्होंने बुला लिया कि जैसे। यानी कि आप ये कहते हैं कि आला अफसरान ने आपको बहुत सपोर्ट किया, और ख़ास तौर पे जो है ना आईजी साहब ने आपको भी बड़ा सपोर्ट किया। तो अब आप जो है ना इस मंजिल तक पहुँचे हैं, तो कैसा फ़ील कर रहे हैं? इस मंजिल तक पहुंच के बहुत अच्छा फ़ील कर रहा, क्योंकि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहती थी स्टार्ट से। तो यहाँ पहुंचकर मेरा वो ख्वाब पूरा हुआ है, और मैं कम्युनिटी को सिक्योर कर सकती हूँ, उनके मसाइल सुन सकती हूँ और आला हुकाम तक पहुँचा के उनको हल भी कर रही हूँ और कर भी सकती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताएं कि आपके पास यहाँ पे आपकी कम्युनिटी के लोग भी आते होंगे ज़ाहिर है मसाइल लेके, तो उनके क्या क्या मसाइल होते हैं, और जब आप हल कर लेते हैं तो क्या उनके तासुरात होते हैं? उनके ज़्यादातर मसाइल होते हैं विरासती, उनको विरासत नहीं मिलती। मतलब माँ बाप या बहन भाई इशू करते हैं कि आप ट्रांसजेंडर हैं। इसके अलावा हरासमेंट के केसेस आते हैं, उनको धमकियाँ मिलती हैं, शराब पी कर जो बाश लड़के और ये होते हैं उनको तंग करते हैं, हरासमेंट के केस वगैरह आते हैं, और यहाँ पर हम सुनते हैं और उनको हल भी करवाते हैं। तो क्या तासुरात होते हैं जब हल हो जाते हैं? उनकी खुशी देखकर, उनके चेहरे की रौनक देखकर तो मुझे दिली सुकून हासिल होता है कि हाँ, जो मैंने कोशिश की थी, जो मैंने ख्वाब देखे थे, आज पाया तकमील तक पहुँचे हैं। और बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा, और ये कि आपकी फ़ैमिली में से, जहाँ आपके फ्रेंड आपके बकौल के सपोर्ट किया, फ़ैमिली में से आपको सबसे ज़्यादा किसने सपोर्ट किया? फैमिली, मेरे अबू जान की डेथ हो गई थी, मैं 2 साल की थी। उसके बाद मेरी फैमिली शॉर्ट है, दादा दादी अम्मी और भाई। तो बाकी भी सब ने सपोर्ट किया, लेकिन जो एक बैकबोन की हैसियत रखते हैं वो मेरे दादा अबू हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो जब आप यूनिफॉर्म सजा के गए तो दादा ने देखा होगा या उनको पता चला होगा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, तो क्या उनके जज्बात थे? हाँ, यही बात है, क्योंकि मैंने सारा काम छुप के किया था। जो पहली अप्लाई में मुझे मुश्किल आता है वो भी मेरे घर वालों को पता नहीं था। दूसरी अप्लाई में भी कुछ पता, मैंने बताया भी नहीं कि मैंने अप्लाई किया हुआ है, कि मैं पास ना हुई तो लोगों की अपोजिट बातें ना आए। जब मैं सिलेक्ट हो गई तो उनके लिए एक सरप्राइज़ था कि मैं गई, दादा अबू को कहा कि मेरी जॉब हो गई, पंजाब पुलिस में मैं सिलेक्ट हो गई। तो वो माने नहीं, कहते नहीं आपने अप्लाई भी नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने उसे प्रूफ दिखाया, मतलब ये गवर्नमेंट के मैसेज आए हुए थे और मुबारकें मिल रही थी वाइस उन्हें, फिर वो खुश हुए कि। अच्छा, तो जो लोग ये समझते थे आपके, ज़ाहिर है वहाँ पे आपके गांव में आपके आसपास के काफ़ी सारे रिलेटिव्स भी होंगे, आपके जानने वाले भी होंगे, कि आप ये जो तालीम हासिल कर रहे हैं इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा या आप कुछ नहीं कर सकते, तो उनको फिर क्या आंसर दिया आपने, उनको क्या जवाब मिला? ज़ाहिर है जवाब तो उनको मिल गया, लेकिन फिर भी उनके क्या फिर थे तासुरात?
भाई को और दादा को सारे कहते थे कि आप ना इन पे पैसे ज़ाय कर रहे हैं, इनको कौन जॉब देता है, बस 10 पढ़ लिया है, 8 पढ़ लिया, नाम लिख लेते हैं, इनको बस करो, अब वहाँ हॉस्टल में भेज रहे हो, इतना पैसा ज़ाय हो रहा है। लेकिन जब जॉब हुई तब भी कोई नहीं मान रहा था कि नहीं ये झूठ बोलते हैं, इनकी जॉब होती ही नहीं है। तो दादा अबू ने कहा यूनिफॉर्म पहन के आओ, फिर इनको यकीन आएगा। फिर मैं यूनिफॉर्म पहन के गई, तो फिर भी कुछ लोग अभी तक भी मानते कि इनकी जॉब हुई है, जैसे लोगों का कॉन्सेप्ट बना हुआ है। तो सही 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 सही। अच्छा, तो आप जो है आगे क्या आपके गोल्स हैं सभी, आगे के आगे क्या इस तरह की डायरेक्शंस हैं आपकी कि आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे पहुँच जाएं? मेरे पास इसी महकमे में रहकर आगे तरक्की के शौक़ हैं, आगे बढ़ें, मतलब हाई पोस्ट पर जाएं। तो इस तरह इसी के साथ साथ मैं आईजी साहब को यही कहना चाहूँगी कि हमारे लिए आगे भी कोटा बनाएं, इससे बढ़कर पीपीएससी में या उससे आगे जो भी जॉब्स आती हैं पंजाब पुलिस में, तो हमारा अलहदा कोटा बनाएं। ठीक, सही सही। अच्छा, तो आगे की जो आपकी गोल्स हैं आपके बकौल, तो वहाँ आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप अचीव कर लेंगे वो गोल्स? हाँ, इंशाल्लाह मैं कर लूँगी, और मैंने प्रॉपर तैयारी भी स्टार्ट की हुई है। मुझे यकीन है कि जैसे मैंने ये बुनियाद रखी है तो ऊपर आगे इमारत बनाना भी मेरे लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, सबिया, आप अपनी कम्युनिटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़ाहिर है आपकी कम्युनिटी में काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे कि जो डिसहार्ट हो जाते हैं, कोशिश नहीं करते, और वो ये सोचते हैं कि शायद हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए आपका क्या पैगाम है? उनके लिए मैं ख़ुद भी एक मिसाल हूँ। पीछे उन्होंने सुना होगा, मेरी स्टोरी सुनी होगी, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि वो भी कोई हुनर सीखें और तालीम हासिल करें और बावकार तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें और अपना रोज़गार कमाएं और ख़ुद को इतना मजबूत बनाएं कि कोई उनको धत्कार ना सके। बस यही कहना चाहूँगी उनके लिए। तो उनको क्या क्या मुश्किलात आएंगी और कैसे फेस करें? अब तो वैसा नहीं रहा दौर, क्योंकि अब थोड़ा चेंज हो गया है माहौल, तो उतना मुश्किलात तो नहीं आएंगी, लेकिन मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, थोड़ा बहुत आएंगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उनको। और आवाम के लिए आपका क्या पैगाम है कि वो किस तरह ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ रिएक्ट करें, कैसे उनके साथ बर्ताव करें, क्या उनके लिए मैसेज है? ट्रांसजेंडर आम के लिए भी यही है कि ट्रांसजेंडर भी अल्लाह ताला के मखलूक हैं, उनके साथ भी आप बेहतर रवैया अख्तियार किया करें। मैं मानती हूँ कि वो उनका थोड़ा लहजा बोलने का और थोड़ा अंदाज़ मुख्तलिफ है, लेकिन उनकी परवरिश स्टार्ट से ऐसे होती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ दफातर में तैनात गज़टेड ऑफिसर, गार्ड से लेकर गज़टेड ऑफिसर तक को भी मैं यही कहना चाहूँगी कि खुदारा अगर वो आपके पास आते हैं तो कोई उनको ऐसी वैसी बात ना किया करें, उनका इशू सुन के कोशिश तो क्या करें हल करने की। हल ना हो तो फिर दुख नहीं होता, कोशिश लाजमी है। जी। अच्छा, ये तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ का जो इनिशिएटिव है हाजी साहब का, तो ये कैसा है? कितना एक सेफ़ है? क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? और आप यहाँ बैठी हैं इस छत तले, क्या देख रहे हैं? हाँ, ये बहुत इनिशिएटिव है आईजी साहब का कि पूरे ज़िले के ट्रांसजेंडर के लिए एक सेल के नीचे सारे काम हो रहे हैं। तो ये रहीमियार क्या बल्कि पूरे पंजाब में आईजी साहब ने ये सेल कायम किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ मरकज़। इसके नीचे जो भी ज़िंदगी के उनके मसाइल हैं, जो पीछे मैं बता चुकी हूँ, हरासमेंट, गुरु चेला और ये इसके विरासत के, वो इस छत के नीचे आसानी से उनके हल हो जाते हैं, आला अफसरान और हुकाम तक पहुंचा के, और कर भी रहे हैं। जी, बहुत ही ज़बरदस्त बात। और देखा आपने, गुफ्तगू सुनी नाज़रीन के सबिहा कितनी पुरुमीद हैं, और इन्होंने अपनी जो है स्टोरी भी बताई कि इन्होंने क्या क्या फ़ेस किया है, कितनी मुश्किलात थी इनके जो है सफ़र में यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी के साथ साथ हिम्मत भी दिखाई, बहादुरी से डट के अपने हालात का मुकाबला किया और उस दलदल से निकाल के ख़ुद को आज एक ऐसे मकाम पे हैं ये, और ये महसूस करते हैं कि ये ख़ुद कितना प्रोटेक्ट हैं, और अब ये वही आसानियाँ, वही खैर अपनी कम्युनिटी में भी बांट रहे हैं। और इनका ये कहना है कि ये मज़ीद भी इसी महकमे में रह के आगे जाएंगी और मज़ीद अपनी कम्युनिटी के लिए जहाँ ये आसानियाँ पैदा करेंगे, वहाँ दूसरे लोगों के लिए भी जो है आसानियाँ तकसीम करके अपने इस मिशन को जो है कामयाब होता देखेंगी। अपने मेज़बान असद महमूद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।